Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10. My dear students, we have been enjoying vacations and also the fourth vacation of Corona. But have you ever thought that it is a blessing for you and giving you a lot of time to study by yourself at home and taking your problems, and you can just send this problem to teachers and to ask betterment for you. But I didn't receive a single thing from you. However, let's go through our syllabus. Division of the text. The first is the poem, and the poem is Voice of God. Voice of God. Who wrote it? Louis I. Newman. Who was he? And what was the theme of that very poem? Who wrote it and what was the theme of this poem? Have you ever thought it? And you have to just remember it. The voice of God, the poem says that only virtue is not enough to win the pleasure of God. If you want to win the pleasure of God, you must serve the human being. Because God loves those who love their fellow. Simple. उसके बाद if you come next to the chapter, that is Vice Caliph. Who was the Vice Caliph? Caliph Harun Rashid. He belonged to the dynasty of Abbasi, and he was known for his wisdom and justice. What happened to him one day? The Qadi brought to him a case which he could not settle. That the case was of the ownership of a one beautiful white horse. The two men were claiming the ownership. One was the rich man and the other was a beggar. And both were taking oath. They were swearing that the horse was there. So whatever it is, the caliph was asked or requested by the Qadi to decide the matter. The caliph said that it is very easy. And at that moment, Caliph Harun Rashid take the advantage of the nature of the horse, that he loves his owners and hates the enemies. So he asked both the person to touch the horse, and on the reaction of the horse, they decided the horse was the property of rich man because it shows his pleasure when the rich man touched, and he showed displeasure when the beggar touched it. Got it? And at that moment the caliph said to the beggar that you are a liar, you are a wicked man, you wanted to rob a gentleman and noble citizen, you deserve severe punishment. But he allowed if the rich man forgave him. And it happened. The rich man forgave him happily and also gave him a handful of gold coins. The people in the court were happy and praised his action of this very generosity. So इसमें सीधा सीधा किस्सा था एक घोड़े की ओनरशिप का. दो आदमी कदम खा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था. बादशाह ने घोड़े की नस्यात से फायदा उठाया और फिर दोनों से कहा इसको छू कर दो. जब उन्होंने इसको छुआ तो पता चला कि अमीर आदमी जो है उसकी बात उसका हाथ लगा तो घोड़ा खुश हो गया, और उनको जो दूसरा था फकीर उसके हाथ से घोड़े को नाराजगी का एहसास नजर आया तो बादशाह ने फैसला कर दिया. गरीब आदमी को डांटा, लेकिन जब अमीर आदमी ने उसको खुशी से माफ कर दिया तो बादशाह ने भी उसे माफ कर दिया, और अमीर आदमी ने उसको सोने के सिक्के दिए. गुरबत खत्म है. ये दो चैप्टर मैंने आपको इनको बताए जो मैंने रिवाइज किए, एंड यू हैव टू फाइंड दैट यू शुड नो एवरीथिंग. आपको हर चैप्टर को इसी तरह याद करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर चांस ये कि एमसीक्यूज आएंगे में 50%, और वो उसी सूरत में हल होंगे जब आपने चैप्टर समझा होगा, गौर से समझा. उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी है हमारे. ट्रांसलेशन का मैंने आपको गुरु बताया था कि जब भी आप कोई ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब.
उसके साथ साथ आपको अपने ध्यान से देखना है कि उस ट्रांसलेशन में टेंस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की पहचान क्या है, अगर पास्ट है तो पास्ट की पहचान क्या है, और फ्यूचर है तो फ्यूचर की पहचान क्या है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिए कि हर टेंस के अंदर 4 फॉर्म है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। रिमेंबर दैट, अगर आप एक बात ध्यान में बिठा लें, एक बात को आप समझ लें कि टेंस तब्दील कैसे होता है, तो फिर आपके लिए सब चीज आसान हो जाएगी, आपके लिए ट्रांसलेशन भी आसान हो जाएगा, टेंस समझना भी आसान हो जाएगा। अगर आप एक सेंटेंस सिर्फ लिखे, अगर ये कहा मैंने पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया, अगर गौर से देखें तो एक बात समझ में आएगी, पी लिया का मतलब है पास्ट, पी लिया पास्ट। अब ये पास्ट कौन सा पास्ट है, इंडेफिनिट है या परफेक्ट है? गौर से देखिए, मैंने पानी, अगर होता मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया, सिर्फ पिया, मैंने पानी पिया, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मैंने पानी पी लिया, अब ये भी पानी पी लिया, इसका मतलब पानी पी चुका, मैं पानी पी चुका। अब ये कैसे पता चलेगी ये प्रेजेंट है पास्ट? अब अगर यहां याद रखिए, अगर यहां लिखा हूं मैंने पानी पी लिया है, सॉरी अगर वो पानी पी लिया है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर मैंने पानी पी लिया था, अगर था तो पास्ट परफेक्ट है। याद रखिए ध्यान में, है और था, है और थे से पता चल जाएगा कि पास्ट है या प्रेजेंट। लेकिन जब आप यहाँ पर देखिए, इंडेफिनिट में और परफेक्ट में फर्क ये होता है, इंडेफिनिट में किसी चीज का काम कंप्लीट तो बताया जाए, लेकिन है या था, ये दो चीजें बताती हैं कि प्रेजेंट। मैंने पानी पी लिया है, दैट इज आई हैव ड्रंक वाटर। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। मैंने पानी पी लिया, आई, अब हैव आएगा, हैड आएगा, तो ये है और था से पता चलेगा कि आई हैव ड्रंक वाटर या आई हैड ड्रंक वाटर। ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखिए। ट्रांसलेशन में सबसे अहम चीज है आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और अगर यहां होगा कि मैंने पानी पी लिया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो दो चीजें आपको मैंने बताई है। पहली बात कि आपको याद रखना है कि जो कुछ पढ़ा उसका रिवीजन करना है और कॉपी भेजनी है मेरे पास। दूसरी बात, ट्रांसलेशन पर तवज्जो देइए, क्योंकि ट्रांसलेशन एग्जाम में भी आएगा अंग्रेजी से उर्दू में। दूसरी बात ये है कि आपको जो कुछ लिखना होता है वो दरअसल ट्रांसलेशन होता है, जो कुछ लिख रहे हैं वो ट्रांसलेशन है। ज़हन में बात आ रही है उर्दू में और उसको अंग्रेजी में पेपर पर रख दीजिए, सिंपल। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत, लेकिन अपनी कापियां फौरी तौर पे भेजिए ताकि मैं देख सकूं आपने क्या क्या है, कितना काम आपने किया है, क्या इनकम्प्लीट है आपके पास। पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है टेक्स्ट बुक का, आपके पास भी कापी में है कि नहीं? ठीक, अल्लाह हाफिज़।